Welcome once again. Till the last video we was discussing about mechanism of DNA replication, which is to be continued in this video again. Alright. In the last video we have discussed two steps of mechanism of DNA replication, and in the first step we have discussed about ORI, that is origin of replication, the sequence or an area within the DNA from where replication starts during the process of copying of a DNA strand. Alright. And in the second step we have learned about the activation of nucleotides. What we have actually learned in activation of nucleotide is nothing but we have learned the addition of two extra phosphorus within a normal nucleotide to form a high energy bond, so that the extra energy which we have stored in the form of bonds can be utilized during the formation of polymer of nucleotides, because that is ultimately our aim, to form a single strand or to form a strand of DNA from the parent strand. And the DNA or the type of replication is semi-conservative type, which we have already seen and experimentally proved from Michelson Stahl experiment. Alright, we have also seen, or we have also noted the point about the experiment which was done by Taylor and his colleagues or his team on eukaryotes, which was Visia fava beans, and he took radioactive thymidine in his experiment, which forms an, or which is important from the from both point of view, that is your NEET or your pre-medical examination or any examination whosoever asks biology in it. All right. And it's also important from board point of view. A question can be asked that describe Michelson and Stahl experiment, which I have already explained you in detail. All right. So after covering two steps, in the third step, what we have to deal is the in the third steps we were studying about uncoiling of DNA helix, and we have seen uncoiling of DNA helix. We have seen the enzymes involved over here. We have already said you that in the uncoiling of DNA helix there are two or three important enzymes which are involved. I have also explained why we actually need to uncoil the DNA helix, because see, in order to make a strand from the parent strand, you need to separate the strand, or you need to carry on the process of denaturation of DNA. What is denaturation of DNA? For your point or for your knowledge, let me tell you that denaturation of DNA is nothing but denaturation of DNA is actually separating the two strands of DNA which was joined with the help of hydrogen bond. So how can hydrogen bond be removed? Hydrogen bond is only responsible for the helical structure of the DNA. So in order to remove the helix, we need to use an enzyme helicase, which will cut the hydrogen bond and remove two different strands, or remove two strands separately. All right, but we have noted that, or we have seen yesterday also, that when two strands will separate, when these two strands will separate, they can again be joined by the help of hydrogen bonds. All right, so in order that they do not join again, we have actually attached a single stranded binding protein to each strand. That is why its name suggests single stranded binding protein. मतलब कि ये सिंगल स्ट्रैंड पे जाकर बाइंड करेगा ताकि वो दोनों स्ट्रैंड आपस में पास में ना आए और अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। हेलिकेस एंजाइम का क्या काम था? बहुत आसान काम था, उसका काम बस हेलिक्स को ओपन करना था। और जब ये डीएनए के स्ट्रैंड को खोल रहा था, तो मैंने आपको कल भी बताया था, व्हेन इट वाज ओपनिंग द डीएनए, जो हेलिकल अपना डीएनए का स्ट्रक्चर था, मान लो ये अपना डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर को जब ये खोलेगा ना, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि खोलेगा तो वाई सेप्ट, यदि आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर को खोलिए, आपको एक्सपेरिमेंटल भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ये देखो इस प्रकार का खुलेगा, तो ये वाई सेप्ड स्ट्रक्चर बना। कैसा स्ट्रक्चर बना? इट फॉर्म्ड ए वाई सेप्ड स्ट्रक्चर। और वाई सेप्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? वी हैव कॉल्ड इट रेप्लिकेशन फॉर्क। कोई दिक्कत? हमने ही इसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क बोला था। और ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पर नोट भी कर रखे हैं। ये हमने कल आपको बताया भी था व्हाट इज रेप्लिकेशन फॉर्क, कि जब हम दो इन जो स्ट्रैंड जो कॉइल्ड डीएनए है, ये अपना कॉइल्ड डीएनए ही है, डीएनए का हेलिक्स ही तो है ये डीएनए का हेलिक्स है। इसको हम लोग क्या किया? ओपन किया, और यहाँ पे क्या लगे? एंजाइम्स लगे। एंजाइम्स के माध्यम से हमने ओपन किया तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और इसी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को एक फॉर्क के जैसा स्ट्रक्चर है। फॉर्क क्या होता है? एक जनरल यूटेंसिल है, और एक जनरल एक्चुअली में स्पून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं चाइनीज़ फूड्स वगैरह खाने में, जिसमें आप चाउमीन वगैरह खाते हो, पास्ता हो गया, और उस प्रकार का मटेरियल जो कि जनरली मान लो मैगी है, उसको पिकअप करने के लिए, फिर उसे खाने में सहूलियत होती है। देयरफॉर वी यूज़ फॉर्क। तो फॉर्क के जैसा स्ट्रक्चर बना यहाँ पर ओपन होने के बाद, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, इसीलिए उसे हमने कह दिया रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि ये फॉर्क रेप्लिकेशन के दौरान बन रहा था। देयरफॉर वी कॉल्ड इट रेप्लिकेशन फॉर्क। सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर ली थी, मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ जल्दी से। ऑलराइट,
एक चीज़ और, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है, मैंने कल भी बताया था, एक बार बस जो लिखा हुआ है अपन समझ लेते हैं। दे बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज टेट्रामर टू प्रिवेंट रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ये आप ना भी ध्यान रखोगे कि किस फॉर्म में बाइंड करता है, हालांकि ये टेट्रामरिक फॉर्म में बाइंड करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन 1 2 3 4 इस प्रकार का होता है उसका स्ट्रक्चर, और यही जाकर बाइंड करता है। ये SSBP जो है ना, उसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है। ऑलराइट, SSBP का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है, ठीक है। ये टेट्रामर के फॉर्म में SSBP होते हैं। इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर, तो इसी टेट्रामर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन आप ध्यान ना भी रखो तो चलेगा। और ये क्या करते हैं, ताकि ये डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड को जो हेलिकेज ने खोला है, ये जो स्ट्रैंड को हेलिकेज खोल रहा है, ये जो स्ट्रैंड जो हेलिकेज खोल रहा है, ये वापस में हेलिकल ना हो जाए, ये वापस में हेलिकल ना हो जाए, इसी को रोकता है। मतलब कि ये जैसे खुले हुए हैं उसी प्रकार का रहे। ऑलराइट, इसको यहाँ पे जाकर बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ पे जाकर बाइंड करेगा और ये इन दोनों को पास में आने से क्या करेगा, रोकेगा। ऑलराइट, ये सारी बातें हमने कल के भी लेक्चर में बात की थी, तो वही सारी बातें मैंने लिख भी रखी है। प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। ऑलराइट, अगला जो एंजाइम था वो क्या था, टोपोआइसोमरेज। इसका काम क्या है, रिलीज टेंशन ड्यू टू सुपर कॉइलिंग एट अपोजिट एंड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी तार को ओपन करते हो तो आप देखोगे कि जब आप ओपन कर रहे होते हैं मैनुअली भी, आप उसे हाथ से भी ओपन करोगे तो नीचे जाके ना एक जगह पर गांठ पड़ जाती है, जिसके बाद वह तार या फिर कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं खुल पाता है। तो क्या करते हो आप, वहाँ पे या तो कट लगाते हो या फिर मैनुअली या फिर अपने हाथ से जाकर उसको ढीला करते हो। तो यहाँ पर वो ढीला करने वाला जो काम है ना, वो एक एंजाइम करता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। जो डीएनए में जो सुपर कॉइलिंग हो जाती है, नहीं खुल पाता है डीएनए, उसको जाकर ढीला करेगा। यहाँ पर ढीला नहीं करता बल्कि उसको हल्का सा कट दे देता है और वापस ज्वाइन कर देता है। ढीला हो गया, फिर से हेलिकेज जाएगा, खोलता जाएगा, ताकि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में बाधा ना आए, कोई दिक्कत। तो टोपोआइसोमेरेज का जो है, इसी के इक्विवेलेंट एक एंजाइम होती है प्रोकैरियोट्स, मतलब टोपोआइसोमेरेज वाला ही फंक्शन प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज नाम का एक एंजाइम परफॉर्म करता है। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, हल्का सा कट देगा। यहाँ पे मान लो कि ये आपका डीएनए था और इस जगह पे इस जगह पे फंस रहा था, तो इस जगह पे क्या करेगा ना, ये जो आपका टोपोआइसोमेरेज है, इस जगह पे हल्का सा कट देगा, हल्का सा कट देगा, ये थोड़ा सा ढीला होगा और इसके बाद ये देखिए नीचे की ओर निकल गया, फिर ये नीचे कॉइलिंग हो जाएगी। कोई दिक्कत, हालांकि आपको जानना जरूरी नहीं है, सारा डायग्रामेटिकली मैंने बना रखा। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कल के लेक्चर में, को बस मैं अभी रिकैप्चुलेट कर रहा था। तो यही काम क्या करेगा, इसका काम क्या, बस ये कट करेगा, हल्का सा टेंशन को रिलीज करता है और वापस रीसील कर देता है डीएनए को, फिर अपना हेलिकेज अपना फंक्शन करता है। ऑलराइट, तो प्रोकैरियोट्स में इसी के एनालॉगस एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज। कोई दिक्कत, यहाँ तक कल हमने बात कर ली थी, आगे बात करते हैं। ये डायग्राम भी मैंने कल डिस्कस किया था कि ये पैरेंट डीएनए अपना, दिस इज पैरेंट डीएनए। पैरेंट डीएनए क्या करेगा, ओपन होगा, ओपन करने में कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, हेलिकेज। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। और इसका काम क्या है, इट फॉर्म से फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क अपन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं चाहिए। हेलिकेज एंजाइम और ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का क्या काम है, टेंशन को रिलीज करेगा ताकि आगे अपना हेलिकेज काम कर सके। टेंशन को रिलीज कैसे करेगा, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा। प्रोकैरियोट में यही काम डीएनए गायरेज एंजाइम करता है। ऑलराइट, नोट कर लीजिए, यहाँ तक हमने कल बात की थी। अब आगे क्या होगा मैंने आपको बताया कि जब अब यहाँ तक खुल तो गया, तो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो चीज़ें होती है वो कंटिन्यूअस चलती है। मींस जो चीज़ें हैं कोई क्लियर कट नहीं होता कि मतलब यहाँ पे खुल गया तो थोड़ा देर रेस्ट कर लो भाई साहब, उसके बाद करेंगे ना रेप्लिकेशन, ऐसा नहीं होता। एक बार जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनता जा रहा है, मतलब कि वंस दिस रेप्लिकेशन फॉर्क इज गेटिंग फॉर्म्ड, जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क जब बनता जा रहा है ना, ये रेप्लिकेशन फॉर्क मान लो कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया और इधर का डीएनए का मान लो कि भी खुलना बाकी है, मैंने उसको लीनियरली ही दिखा दिया। तो यहाँ पे अभी हेलिकेज लग रखा है, ये हेलिकेज है मान लो, तो यहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि साथ साथ में खुल भी रहा है, बन भी रहा है, खुल भी रहा है, बन भी रहा है, खुल भी रहा है, बन भी रहा है, ये प्रोसेस होती है। मतलब थिंग्स आर कंटिन्यूअस विद इन आवर लिविंग सिस्टम। कोई भी चीज़ों में क्लियर कट नहीं डेफिनेशन आप बता सकते। ऐसा नहीं ना होता है कि ठंडा आपको पता है, मान लो एक एग्जाम्पल हो ना कि आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि, और कहीं आपने ऐसा सुना है क्या कि 5 अगस्त तक गर्मी रहेगी, 6 अगस्त से ठंडी पड़ जाएगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में, इन्वायरमेंट में चीज़ें एकाएक नहीं बदलती है। चीज़ें धीरे धीरे स्लोली बदल जाता है और वही धीरे धीरे चीज़ें एक शिफ्ट हो जाता है, बट द शिफ्ट इज स्लो। मतलब चीज़ें कंटिन्यूअस होती है, क्लियर कट नहीं होती है। मतलब कि गर्मी क्या होगा, जब गर्मी से मौसम बदलेगा
तो बारिश होगी, बारिश क्या होगा, पहले हल्की सी बारिश होती है और बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई, हल्की सी ठंड आई, हवाएं चली, धीरे धीरे ठंड बढ़ती गई, हवाएं बढ़ती गई और ठंड का मौसम आ गया। फिर गर्मी आना होगा तो क्या होगा, हल्का सा धूप का, जब मतलब कि आपको पता ही है कि इन विंटर सीजन जो सनलाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद गर्मी आ जाएगा। तो ये स्लोली स्लोली चीज़ें प्रोसेस हो रही होती है। सेम प्रकार, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी, हमारी सिस्टम में भी सेम ही फॉर्मेशन और सेम ही प्रोसेस चलता है। मतलब कि जब एक तरफ से ये चीज़ें खुल रही है, एक तरफ से जब ये खुल रहा है, एक तरफ से हेलिकेज जब अपना काम कर रहा है, उसी के विपरीत इधर डीएनए रेप्लिकेशन के नए स्ट्रैंड बनने का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि थिंग्स आर कंटिन्यूअस, ऑल राइट, मतलब कि चीज़ें कंटिन्यूअस ही हैं, चलेगी। तो आपको एक बात बता दूं कि जब आपको पता है कि अल्टीमेटली करना क्या है, कि मुझे एक पॉलीमर बनाना है, अरे एक स्ट्रैंड बनाना है। स्ट्रैंड डीएनए का क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। पहले के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने में जो 3,5 डाइस्टर बॉन्ड बनेगा, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, इसीलिए तो हमने न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट किया था, ताकि उसमें जो दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट वाले बॉन्ड हैं जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है, उसको तोड़ा जा सके। दैट वाज आवर पर्पस, वही तो हमारा पर्पस था भाई, वही तो हमारा नीड था, इसीलिए तो हमने उसे तोड़ा, लगाया था, इसीलिए तो एक्टिवेट किया था। तो वहाँ से ले लेंगे। लेकिन जो ये अपना पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, आपको बता दूं मैं कि जो पॉलीमर बनता है उसको बनाने के लिए मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज भी 3 प्रकार के होते हैं, और वो तीनों में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ये आप जान लो, और आगे मैं लिख भी रखा हूँ अच्छे से और बताऊंगा फिर से, लेकिन फिर भी जान लो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तो पॉलीमर जब बनेगा ना, तो पॉलीमर डायरेक्टली नहीं बनेगा। पॉलीमर जब डीएनए पॉलीमरेज बनाता है तो वो कहता है कि मैं पॉलीमर तभी बनाऊंगा जब मुझे OH ग्रुप फ्री मिलेगा। तो ये OH ग्रुप के डिमांड को पूरा करने के लिए आरएनए प्राइमर आता है। और ये आरएनए प्राइमर होता क्या जी, ये कुछ नहीं होता है, बल्कि इट इज़ ए, मतलब कि आरएनए प्राइमर का बनना जरूरी क्यों है, आरएनए प्राइमर का बनना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज बोलता है कि मैं रेप्लिकेशन, मतलब कि मैं नया स्ट्रैंड तभी बनाऊंगा जब मुझे फ्री OH ग्रुप मिलेगा। क्योंकि फ्री OH ग्रुप का मिलना क्यों जरूरी है, क्योंकि 3,5 डायस्टर बॉन्ड में आपको पता था कि थर्ड पोजीशन पे 3,5 डायस्टर बॉन्ड में, आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि 3,5 डायस्टर बॉन्ड में क्या होता था। मान लो कि ये आपका एक नॉर्मल शुगर है, तो यहाँ पे OH है, और ये एक नीचे वाला शुगर है, इस जगह पे फॉस्फोरस लग रखा है, ये 5th कार्बन है मान लो। तो यही तो बॉन्ड बनाता था ना, इसका OH और इसका H, यही बॉन्ड। तो यहाँ पे OH होना जरूरी है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि जब तक मेरे को OH ना मिलेगा मैं बॉन्ड नहीं बना रहा। तो आरएनए प्राइमर जो अपना है ना, ये आरएनए प्राइमर जिसे हम बोल रहे हैं, ये आरएनए प्राइमर बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट प्रोवाइड्स फ्री OH ग्रुप, डीएनए पॉलीमरेज को ये प्रोवाइड करवाएगा, और तभी ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा। इसीलिए आरएनए प्राइमर का बनना जरूरी है। और प्राइमर होते क्या हैं, सवाल है ना, प्राइमर होते क्या हैं। प्राइमर कुछ नहीं होते भाई साहब, प्राइमर एक सिंपल सा एक आरएनए का स्ट्रैंड है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब डीएनए के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल, देखो आप 1 मिनट आ जाओ इधर। फॉर एग्जांपल आप देख लो कि मान लो कि ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। इसकी बेस, इसके नीचे इसमें जो बेस लगे हुए हैं ना, मैं बताता हूँ, ATGC G। अब मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। अब जब मान लो कि इससे आपको आरएनए का स्ट्रैंड बनाना है, तो जब डीएनए से आरएनए की एक स्ट्रैंड बन रही है, तो आरएनए में, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी बात है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मान लो इससे आरएनए का स्ट्रैंड बनाना है, तो क्या बनेगा, एक ही जगह पे टी तो आएगा नहीं, क्योंकि जब आरएनए है तो ये यू आएगा, टी की जगह पे ए आएगा, जी की जगह पे तो सी तय है, यहाँ पे जी तय है, सी। ये क्या बन गया, आरएनए का स्ट्रैंड बना, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ना, तो यही होता है प्राइमर। मतलब कि ए स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, मतलब कि स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। बन किससे रहा है, किसके हेल्प से, इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और कौन सा एंजाइम बन रहा है, क्योंकि आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, तो कौन सा एंजाइम है पॉलीमराइजेशन करवाएगा, इसका आरएनए पॉलीमरेज करवाएगा। कौन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए के स्ट्रैंड से बन रहा है, देयरफॉर इसका बोलेंगे पूरा प्रोसेस को डीएनए
डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये पूरा प्रोसेस होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है काफ़ी अच्छे से, नोट्स आपको पूरा मस्त वाला मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। मस्त वाली क्वालिटी, मस्त वाली कंटेंट मिलेगी, उसके लिए टेंशन मत लेना। आप बस पढ़ने के लिए और फाड़ने के लिए चीज़ों को तैयार रहो। ऑलराइट, आगे सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम मस्त अच्छे तरीके से अरेंज करके प्रॉपरली लिख रखा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ना है नॉर्मली। ऑलराइट, तो क्या हुआ, आरएनए प्राइमर है क्या, बनाए क्यों आरएनए प्राइमर, इसलिए बनाए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बोला कि भाई साहब अपन रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन, हम लोग रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट करेंगे जब हमें फ्री ओएच ग्रुप मिलेगा। तो इसलिए आरएनए प्राइमर को बनाना था। प्राइमर है क्या, मैंने अभी अभी बताया, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। आ गई बात समझ में, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, डायग्रामेटिकली मैंने आपको दिखाया अभी। और इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स ओएच टू डीएनए पॉलीमरेज। एक बार जब ये आ जाएगा, ये क्या है, ये जो 5'3' आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ब्लू वाला, ये जो आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, ये या दिस स्ट्रक्चर, इट इज आरएनए प्राइमर। और एक बार ये आएगा, ये 3' पे ओएच को प्रोवाइड करवाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज आरएनए प्राइमर, 5' to 3', ये 3' पे ओएच को प्रोवाइड करवाएगा और आगे फिर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना अगला स्टेप क्या हुआ कि आगे तो अपने को रेप्लिकेशन करवाना है, क्योंकि हमने हेलिक्स को खोल भी दिया। तो रेप्लिकेशन करवाने के लिए अपने अगला जो स्टेप है वो था प्राइमर का बनना। इसलिए अपन जो फोर्थ स्टेप जो है जिसमें हम पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। ऑलराइट, तो वही मैंने बात बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, कहने का मतलब डीएनए पॉलीमरेज कांट इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन। सारी बातें क्यों नहीं इनिशिएट कर सकता, डीएनए पॉलीमरेज कैनॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज नीड ए फ्री ओएच ग्रुप टू स्टार्ट रेप्लिकेशन। व्हाई डज इट नीड फ्री ओएच ग्रुप, ये भी क्वेश्चन है। व्हाई एंड हाउ पे पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है। यू आस्क, go on asking questions, you go on asking questions from yourself, you go on asking questions from your teacher, and soon you will become the master of this subject. All right, तो इस सब्जेक्ट की डिमांड यही है कि आप जितना ज़्यादा वाई एंड हाउ करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा इस चैप्टर सब्जेक्ट में। कोई प्रॉब्लम, तो आपसे पूछूंगा व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ प्राइमर फॉर्मेशन। देयर इज ए नीड ऑफ प्राइमर फॉर्मेशन बिकॉज प्राइमर हेल्प्स टू प्रोवाइड OH group to the DNA polymerase so that DNA replication can start. Because DNA polymerase की लिमिटेशन है कि मैं तब तक रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं तब तक नया स्ट्रैंड नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे OH ग्रुप ना मिलेगा। और OH ग्रुप का लिमिटेशन इसलिए है, क्यों चाहिए उसको OH ग्रुप, क्योंकि OH ग्रुप ना रहेगा तो 3,5 डायस्टर बॉन्ड, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा जो पहला है, और इसीलिए वो इनिशिएट ही नहीं कर पाता है। तो इसका काम क्या है, प्राइमर का, डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि इनिशिएट रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाने में मदद करता है। प्राइमर कौन से थे, आरएनए के प्राइमर। आरएनए के प्राइमर क्या होते हैं, सारा बात मैंने आपको पहले बताया। स्मॉल सीक्वेंस था सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का, कॉम्प्लीमेंट्री था पेरेंट डीएनए के, और फॉर्म्ड एट 3' एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड। ये सारी बातें आपने वहाँ पर देखी। कैसे बना था, डीएनए डिपेंडेंट, मतलब कि डीएनए की स्ट्रैंड से बन रहा था। पॉलीमराइजेशन आरएनए का हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और इस पूरे एंजाइम को अपन बोलते हैं प्राइमेज। तो प्राइमेज ने क्या किया, आरएनए के एक स्ट्रैंड को बना दिया, कोई दिक्कत, विच वॉज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, वंस दिस न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड, जब ये न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा तो ये प्राइमर, मान लो कि जब नया स्ट्रैंड आपका बन गया, फॉर एग्जाम्पल आ जाओ इधर आप, ऐसे आपको डायग्रामेटिकली आगे मैंने बना भी रखा है। मान लो कि आपका जो नया स्ट्रैंड था, ये देख लो आपका जो डीएनए खुला हुआ था, डीएनए जो खुला हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा। मान लो कि अब नया स्ट्रैंड यहाँ से बनते आया, इस प्रकार से इधर से नया स्ट्रैंड बन के आ रहा है। तो नया स्ट्रैंड जब एक बार, मान लो कि यहाँ तक नया स्ट्रैंड बन गया, लेकिन यहाँ पे तो प्राइमर लगा हुआ है, तो जब एक बार नया स्ट्रैंड बन जाएगा तो इस प्राइमर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो पूरा डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई इतने का कॉपी तुम मत बनाओ, अगर इतने का भी कॉपी नहीं बन पाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है। मान लो कि यदि इसी में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, मतलब कि ये डीएनए का सीक्वेंस है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो किसी डिजीज़ के रेजिस्टेंट के लिए या फिर किसी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, तो यदि इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ये तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। समझ लो बात को, पूरा सिस्टम ये गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरा सिस्टम गड़बड़ ना हो, इसी के लिए ये पूरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। पूरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। क्या है, पूरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो पूरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन तभी होगा, पूरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन तभी होगा जब ये आरएनए प्राइमर जो हमने यहाँ पर लगाया है, जिसका काम OH प्रोवाइड करना था, उसे रिमूव किया जाए। तो जब ये रिमूव होगा
तो उस जगह पे जो पॉलीमराइजेशन होगा उस जगह के लिए मान लो जहाँ जहाँ तक के लिए आरएनए प्राइमर था, एक मिनट सॉरी, जहाँ पे आरएनए प्राइमर था ये जब रिमूव होगा, ये जब आरएनए प्राइमर जो आपका था ये वाला ये जब रिमूव होगा तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन आपका उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉलीमराइजेशन आपका वो कौन सा एंजाइम करवाएगा, वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करवाएगा। प्राइमर को रिमूव करके उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो करवाएगा आपका पॉलीमराइजेशन वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। लेकिन बाकी इतनी जगह जो पूरा का पूरा जो नया स्ट्रैंड बनेगा इनका पॉलीमराइजेशन जो एंजाइम करवाएगा वो डीएनए पॉलीमरेज ही है, वो भी डीएनए पॉलीमरेज ही है, बट इट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। ऑलराइट, सारी बातें आगे लिख रखी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस सुनते जाओ, कीप लिसनिंग, बट कीप लिसनिंग वेरी सिंसियरली। चीज़ों को बस आराम से धीरे धीरे मज़े में सुनते जाओ, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी जाकर पढ़ लेना, फाड़ दो एनसीईआरटी को, सारा क्वेश्चन लग जाएगा, जहाँ से भी लगा लो आप। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। वही बात मैंने लिखा है, क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड प्राइमर इज रिमूव्ड एंड गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो रिमूव होने के कारण जो गैप बनेगा इट इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक ट्रिक है, आप मान लो कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, थर्ड क्या करेगा। फर्स्ट से पहला आप इसको हिंदी में बोल सकते हो क्या, प से प ले लो यहाँ पर, प से प्राइमर, प से पहला, मतलब प्राइमर को रिमूव करके जो पॉलीमराइजेशन करवाएगा वो कौन करवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये नॉर्मल हैक्स हैं, इसको आप ध्यान रखो। अब अगला जो स्टेप होगा वो अगला स्टेप क्या होगा कि मान लो कि हमने प्राइमर को ऐड कर दिया, ठीक है साहब, हमने क्या किया, प्राइमर को तो ऐड कर दिया, लेकिन अब क्या करना है कि प्राइमर ऐड होने के बाद हमें नया न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाना है उसके नीचे। अरे जब हम प्राइमर को ऐड करेंगे तो अपना अगला टारगेट क्या होगा, मान लो कि ये आपका पैरेंट डीएनए था जिसे आप खोल रहे थे, प्राइमर को भी आपने ऐड कर दिया यहाँ पर, ये लो आपका प्राइमर। प्राइमर को जब आप ऐड करोगे तो आपका अगला स्टेप क्या होगा कि इसके नीचे एक स्ट्रैंड बनता जाए, इसके नीचे जहाँ तक खुला हुआ है मामला, मान लो ये आपका आरएनए प्राइमर था, ऐड कर दिया, इसके नीचे अपना स्ट्रैंड बनता जाए। लेकिन जैसे जैसे ये वाला आप देख रहे होगे कि ये वाला जो प्रोसेस है ये तो जैसे जैसे खुलता जाएगा एक ही प्राइमर से काम चल जाएगा, लेकिन प्राइमर इस पोजीशन पे तो मात्र यहाँ पे लगा। अब ये पीछे जब ये हेलिकेज इसको तोड़ेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे इसको जब हेलिकेज तोड़ेगा तो वापस यहाँ पर एक प्राइमर की ज़रूरत होगी, वापस यहाँ पर एक प्राइमर की ज़रूरत होगी। मतलब कि आप एक चीज़ गौर कर सकते हो कि इस स्ट्रैंड में जो नया जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है ये तो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, इसमें तो कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस है, मतलब कि लगातार हो रहा है। और वन प्राइमर का ज़रूरत है क्योंकि एक ही प्राइमर कंटिन्यू करवा देगा पूरे के पूरे, क्योंकि रेप इनिशिएशन डीएनए पॉलीमरेज को एक से चाहिए और पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली चलता चला गया क्योंकि खुलता चला गया चलता चला गया। लेकिन यहाँ पे तो ए प्राइमर इस एंड तक तो करवा देगा पॉलीमराइजेशन, लेकिन जो इतना एंड का खुलेगा उसको पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए यदि यहाँ पे प्राइमर वापस लगेगा तो इतना दूर के लिए तो वापस एक प्राइमर लगाना पड़ेगा। अगर वापस एक प्राइमर लगता है तभी तो वो फिर से OH दे पाएगा और तभी तो फिर डीएनए पॉलीमरेज जो अपना है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 वाला वो काम करेगा, तभी काम करेगा। इसीलिए एक स्ट्रैंड में सिंथेसिस कॉन्टीन्यूअस होती है, मतलब लगातार होती है, और ये जो स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है, इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस टाइप। ऑलराइट, सारी बातें लिख रखी है, मैं बस आपको एक बार इन चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ ताकि जब आगे अपन डायग्रामेटिकली चीज़ों को देखें तो और अच्छे से क्लियर हो जाए, और अच्छे से क्या क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्राइमर के एडिशन के बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम क्या है, इट अटैच एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड प्राइमर से ऐड करता जाएगा। तो दो टर्मिनल पायरोफॉस्फेट जो हाई एनर्जी बॉन्ड है ये रिमूव होंगे और यही एनर्जी को रिलीज करेंगे और एनर्जी रिलीज करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एनर्जी रिलीज करके बनाएगा। ये सारी बातें आपको पता है। कौन करेगा ये काम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा। और मैंने आपको बताया था दिस एंजाइम इज वेरी फास्ट। वेरी फास्ट करने का मतलब इट इज ए एंजाइम विच एड्स बेस पेयर एट स्पीड ऑफ 2000 बेस पेयर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2000 बेस पेयर्स को ये जोड़ देता है। ऑलराइट, कितने बेस पेयर्स को, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड। ये इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है, देयरफॉर इट इज़ हाईली फास्ट। एक तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड इट इज़ हाईली क्या कहते हैं, इफेक्टिव और हाईली एक्यूरेट। देयरफॉर डीएनए पॉलीमरेज एक हाईली फास्ट एंजाइम है। और इसका काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का मेन काम है नए स्ट्रैंड को बनाना।
और नया स्ट्रैंड को हमेशा जब डीएनए पॉलीमरेज जब बनाता है डीएनए पॉलीमरेज जब नया स्ट्रैंड को, इट ऑलवेज फॉर्म्स इन द 5' to 3' डायरेक्शन। मतलब कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेगा। आइए देखते हैं क्या लिख रखा है यहाँ पर। क्या लिख रखा है कि डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज फॉर्म्स न्यू स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये बात आपको रट लेना है, ये MTR है, मुझे तो रटो, ठीक है। ये बात मान लो, गांठ बांध लो आप कि जब कभी भी नया स्ट्रैंड बनेगा तो वो कैसे बनेगा, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेगा। आओ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सारा कुछ डायग्राम के माध्यम से अपन फोड़ देंगे, आ जाओ। आइए देखते हैं क्या मैंने आपको बताया। मैंने आपको वहाँ तक दिखा दिया था कि टोपोआइसोमरेज का क्या काम है, हेलिकेज का क्या काम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है, RNA प्राइमर का क्या काम है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला रहा अपना क्या, RNA, ये है अपना RNA प्राइमर, क्लियर। ये अपना RNA प्राइमर। RNA प्राइमर क्या किया इस स्ट्रैंड में, तो जब यहाँ तक खुला हुआ था, जब यहाँ तक मान लो DNA खुला हुआ था, इस जगह पे भी बॉन्ड ही थे, फॉर एन एग्जांपल, ये खुला नहीं था, मतलब हेलिकेज यहाँ पर नहीं, तब तक में यहाँ पे RNA प्राइमर आया और इस जगह पर न्यूक्लियोटाइड बनाने लगा, न्यूक्लियोटाइड। फिर यहाँ पे RNA प्राइमर आया, क्योंकि यहाँ तक खुला हुआ ही था इसलिए यहीं पर प्राइमर आएगा और यहाँ पे आगे चल के बॉन्ड बनाने लगा। लेकिन जब आगे खुला तो ये RNA प्राइमर है, ये वाला जो RNA प्राइमर था आपका, फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो RNA प्राइमर है ये तो इसके आगे ही तो बॉन्ड बना पाएगा, फिर इतना का रेप्लिकेशन कौन करवाएगा, इसके रेप्लिकेशन के लिए फिर RNA प्राइमर लगाना पड़ेगा, लगेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वहां पे फिर से हमने RNA का प्राइमर लगाया और फिर से इतना दूर किया, फिर खुला, फिर RNA प्राइमर यहाँ पे लगाएंगे और फिर से इतना दूर का रेप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। मतलब कि ऊपर के स्ट्रैंड में, ऊपर का जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें तो सिंथेसिस कंटिन्यूअसली वन गो में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि इट इज लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, बिकॉज हियर द RNA प्राइमर और ए सिंगल RNA प्राइमर लीड्स द होल DNA polymerase and leads to the replication of the whole strand, but in downwards parent strand, जो नीचे वाला parent strand है 3' to 5' वाला parent strand, उसमें आप गौर कर रहे हो कि इसमें फ्रैगमेंट्स में DNA का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसमें फ्रैगमेंट्स का DNA पॉलीमराइजेशन हो रहा है। मतलब कि DNA के फ्रैगमेंट्स, इसमें जो पॉलीमर्स हैं वो टुकड़ों में बन रहे हैं, वो जो नए स्ट्रैंड्स हैं वो किस में बन रहे हैं, टुकड़ों में बन रहे हैं। अब जब टुकड़ों में बन रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। टुकड़ा को क्या बोलते हैं भाई, अंग्रेजी में फ्रैगमेंट्स ही तो बोलते हैं। तो ये फ्रैगमेंट जो था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट एंड दिस इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम ओकाजाकी था। सॉरी, इस फ्रैगमेंट का नाम, मतलब कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था, ओकाजाकी था। इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो आपको मैंने क्या बताया कि एक जगह RNA प्राइमर तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करवा दिया, और मैंने बताया था 5' देखो, ये 5' से 3' की डायरेक्शन में जा रहा है। अरे जब पेरेंट स्ट्रैंड 5' to 3' है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा, मतलब पेरेंट स्ट्रैंड 5' to 3' तो टेम्पलेट स्ट्रैंड भी 5' to 3' मतलब कि नीचे जा रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन ऑलवेज 5' to 3' की डायरेक्शन में ही होगा। ये बात आप ध्यान गांठ बांध कर रख लो, इसको सेल कर लो, लॉक कर लो, जहाँ रखना है दिमाग के जिस भी कोने में एक नया मेमोरी सेंटर बनाना है बना लो, लेकिन इस बात को आप ध्यान रख लो कि DNA रेप्लिकेशन ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। और क्यों होगा, हो ना क्यों भाई, अगर जिस साइड से ओपन हो रहा है उस साइड 3' से ऊपर में, तो नीचे 5' आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ठीक है। तो नीचे वाला स्ट्रैंड में आपने देखा कि DNA के फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में बन रहे हैं, क्योंकि खुल रहा है। तो यहाँ तक ही मान लो इसका पहले फेज में मान लो हेलिकेज ने आधा खोला तो वहाँ के लिए RNA प्राइमर आया, वहाँ पे आगे काम किया, यहाँ तक के लिए RNA प्राइमर आया, RNA प्राइमर यहाँ तक के लिए काम किया, तो RNA प्राइमर यहाँ से आगे तो बना दिया, फिर खुला इतना, मान लो इतना खुला, फिर से RNA प्राइमर यहाँ तक आया, फिर इतना काम किया, फिर यहाँ आएगा, फिर इतना काम करेगा। मतलब नीचे वाले स्ट्रैंड में मल्टीपल RNA प्राइमर्स की ज़रूरत होगी और वह टुकड़ों में बनेगा। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में RNA प्राइमर को यहाँ पर जब पूरी तरह से ये बन जाएगा, तो इस RNA प्राइमर को हटा के इसके जगह पे जो बेस पेयर लाएगा वो कौन सा लाएगा, इसको लाने का काम DNA पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। DNA पॉलीमरेज क्या कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। ऊपर में एक ही RNA प्राइमर ऊपर वाले में हटाना, लेकिन नीचे में हालांकि मोर देन वन प्राइमर इन्वॉल्व है और टुकड़ों में बन रहा है, तो इस मोर देन वन प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा। जब हटेगा ये प्राइमर तो हटा कर इसके जगह पे जो स्ट्रैंड, जो इसके जगह पे जो बेस पेयरिंग करनी है वो काम DNA पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, और बाकी जगह पे तो DNA पॉलीमरेज थर्ड कर ही रहा है इस पूरे पोजीशन पे।
तो ऊपर का स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड था, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड था, क्योंकि यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर लीडर की तरह काम कर रहा था, कंटिन्यूसली पूरा का पूरा अकेले संभाल लिया। लेकिन नीचे में एक लीडिंग था, लेकिन ये लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि दिस स्ट्रैंड वॉज नॉट कंटिन्यूस, दिस स्ट्रैंड वॉज मेड इन फ्रैगमेंट्स। और इन फ्रैगमेंट्स को पहली बार डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था ओकाजाकी। देयरफॉर दिस फ्रैगमेंट इज आल्सो नोन एज ओकाजाकी डीएनए फ्रैगमेंट, जो कि मैंने लिख रखा है, इट इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। नोट करिएगा अच्छे से इन चीज़ों को। जितनी बातें मैंने बताई आई हैव रिटन इट डाउन अगेन फॉर यू। क्या मैंने बताया? दो तरह के नए स्ट्रैंड बनेंगे। कौन से स्ट्रैंड? पहला स्ट्रैंड होगा कंटिन्यूस स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड, लीडर की तरह हमेशा लीड करेगा, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। क्या होता है? जितनी बातें बताई, सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूसली, एक ही प्राइमर लगेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक दिखा भाई, एक ही प्राइमर तो लगा, देखो ना यहाँ पर एक ही प्राइमर लगा, पूरा का पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा। पूरा का पूरा रेप्लिकेशन एक ही प्राइमर से हो जाएगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पर टुकड़ों में हो ही नहीं रहा रेप्लिकेशन। तो ओकाजाकी फास्टर फॉर्मेशन, जब टुकड़े ही नहीं होंगे, एक बार में पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए तो फास्टर होगा। आपरूपी बेसिक सी चीज़ है। लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ऑन 3-5 पेरेंट स्ट्रैंड। मतलब पेरेंट का स्ट्रैंड कैसा है? 3-5 पेरेंट का स्ट्रैंड है। देख लो आप, मान लो पेरेंट का स्ट्रैंड अपन इस तरफ से रेप्लिकेशन हो रहा है, तो पेरेंट का स्ट्रैंड को इस प्रकार से इस साइड से पढ़ो तो आप क्या है? 3-5 पेरेंट का स्ट्रैंड है। मतलब कि पेरेंट का स्ट्रैंड 3-5 था, इसलिए जो नया स्ट्रैंड बन रहा है 5-3 होगा, स्वाभाविक होगा, कोई दिक्कत। और इसमें नीचे वाले स्ट्रैंड में पेरेंट का स्ट्रैंड 3-5 है, क्योंकि रेप्लिकेशन इस साइड से हो रहा है। तो अगेन जो रेप्लिकेशन का जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो भी 5-3 डायरेक्शन में ही होगा। ये बात आई समझ में? ये बात आपको समझना है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप एक चीज़ को ध्यान रखो। मान लो MTRN नहीं याद होता है, रट लो इसे कि डीएनए की पॉलीमराइजेशन जब नया स्ट्रैंड बनता है, इट ऑलवेज फॉर्म्स इन 5-3 डायरेक्शन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो पहला स्ट्रैंड जो था वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड, उसके बारे में हमने आपको बताया कि कंटिन्यूस स्ट्रैंड क्या होता है। कंटिन्यूस स्ट्रैंड वैसे स्ट्रैंड होते हैं जिसे अपन लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिंगल प्राइमर लीड करता है और लीड करके पूरी की पूरी स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नहीं होते हैं, फास्टर होता है और पेरेंट 3-5 वाला होता है, कोई दिक्कत। अगला जो स्ट्रैंड है अपना जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। वो कौन सा स्ट्रैंड है? लैगिंग स्ट्रैंड। अब लैगिंग स्ट्रैंड का काम क्या है? देखिए, लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म डिसकंटिन्यूसली। आपको पता है टुकड़ों में बन रहा है, डिसकंटिन्यूसली बनेगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्रैगमेंट्स ही डीएनए के प्रेजेंट है, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे क्या? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर प्राइमर जो रिक्वायर्ड होता है, इट इज़ मोर देन वन प्राइमर। आपको दिखा, क्योंकि मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड थे। मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहे थे। ये स्लोअर फॉर्मेशन है, क्योंकि यदि चीज़ें टुकड़ों में होगी तो धीरे धीरे ही होगी, कोई दिक्कत। और पेरेंट का स्ट्रैंड कौन था? 5-3। ये बातें मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, वापस से देख लो। पेरेंट का स्ट्रैंड यहाँ पर क्या है, मतलब कि जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड पेरेंट का यहाँ पर 3-5 नहीं है, और ये 5-3 फॉर्मेशन हो रहा है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। इट इज फॉर्म्ड ऑन ए पेरेंट स्ट्रैंड 5-3। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को यदि आप देखते हो, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। मान लो कि ओकाजाकी कितने फ्रैगमेंट्स, यहाँ पर जो आप फ्रैगमेंट्स देख रहे थे ओकाजाकी वाले फ्रैगमेंट्स, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आप जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो आपने देखा, ये छोटे छोटे टुकड़े थे। इन्हीं टुकड़ों को, तो ये छोटे छोटे आपके टुकड़े दिखे यहाँ पर, 1 मिनट प्लीज़। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखे ना, ये टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े, इन टुकड़ों को भी लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो पूरा कंटिन्यूस स्ट्रैंड चाहिए। जब फाइनल में डीएनए का नया जो मॉलिक्यूल बनेगा वो तो ऐसा बनेगा ना, तो ये तो कंटिन्यूस होगा ना, ये डिसकंटिन्यूस थोड़ी चाहिए अपने को। तो इस दोनों स्ट्रैंड को, ये वाला जो स्ट्रैंड है अपना और ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, इन दोनों को जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेस नाम का एक एंजाइम होता है। इट विल ओनली, यही डीएनए लाइगेस आपको जोड़ने का काम करेगा, कोई दिक्कत। यही डीएनए लाइगेस इसको जोड़ेगा। ये मैंने लिख रखा है, मैंने बस आपको यहाँ पर बता दिया वापस आके, कौन सा जोड़ेगा? डीएनए लाइगेस इसको जोड़ेगा, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, इट इज ज्वाइंड बाय एंजाइम विच इज नोन एज डीएनए लाइगेस एंजाइम, इसको नोट कीजिएगा। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है, आइए उस डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑलराइट, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है मैंने उसे यहाँ पर बनाया है। देखिए ये 5-3-3-5 ये पेरेंट का स्ट्रैंड है। अगर ये 3 है तो यहाँ पर जब न बनेगा तो इसके पास में 5 ही आएगा, ठीक है, और 5-3 होगा।
3-5 जो नया जो ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा ये 5-3 की डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से इस मात्र एक डायग्राम को यदि आप समझ लो ना तो जितना 5-3 था ना सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। एक ट्रिक आप याद रख लो। क्या आज बताऊँ मैं ट्रिक ये है आपका 35 रुपये की 2 बोतल। 35 रुपये की 2 बोतल, मतलब कि बोतल का मुंह यहाँ पे है ना सिरा, मतलब कि कैप उसकी ओपनिंग बोतल की मान लो ये है आपकी, ठीक है। मैंने आप दुकान गए और 35 रुपये की 2 बोतल है, 35 35 लिख दो, 35 एक सीक्वेंस में इस प्रकार से लिख दो, ठीक है। 35 लिखो। यदि यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 5 आना तय है, यदि यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 3 आना तय है। यदि मान लो कि ये 3 है और ये 5, यदि ये 5 है तो ये 3 आना तय है। मान लो ना कि ये 3 आपने लिखा तो ये भी 5 आना तय है और ये 5 लिखा तो ये 3 आना तय है। इतना बस आपको काम करना है कि 35 रुपये की 2 बोतल, क्या 35 रुपये की 3 बोतल, अब 2 बोतल, ये 3 है तो ये 5 आएगा तय, ये 3 है तो ये 5 आएगा, ये 5 है तो ये 3 और ये 5 है तो ये 3। अब आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछ लें आप सारे के सारे बता दोगे। देखो मान लो कि ये जो स्ट्रैंड है ये जा रहा है ऊपर की तरफ और इस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, ये तो दिख रहा है ना कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस इसमें होगा, क्योंकि इसमें तो टुकड़े बनेंगे नहीं, क्योंकि इस स्ट्रैंड में तो हेलिकेज खुलता जाएगा, ये आगे जाता जाएगा, खुलता जाएगा, जाता जाएगा। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम है क्योंकि इतना ही खुला, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर आया, इतना दूर का तो पॉलीमराइजेशन कर दिया, अब यहाँ के लिए वापस आरएनए प्राइमर, तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस वाला स्ट्रैंड तो ये है। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस वाले यदि इसका एनसीईआरटी का डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो बता दोगे कि इसमें तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस क्योंकि दिख रहा है। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस में आपसे पूछ लेगा कि पैरेंट स्ट्रैंड कैसे होते हैं, आप आसानी से बता दोगे कि पैरेंट स्ट्रैंड 3-5 होते हैं क्या पैरेंट स्ट्रैंड को हमेशा इस साइड से ही काउंट रीड करते हैं, मतलब कि जिधर से डीएनए रेप्लिकेशन ये जो सिरा है ना ओपन इधर से रीड करेंगे, तो रीड करो तो क्या है 3-5, इसमें रीड करो पैरेंट स्ट्रैंड क्या है 5-3, मतलब कि यदि एक स्ट्रैंड पैरेंट का 3-5 है तो अगला स्ट्रैंड को आप 5-3 ही तो रीड करोगे। तो आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैंने जितनी भी चीज़ें बताई सारा तो रिकैप्चुलेट हुआ। एक ट्रिक बस आपको ध्यान रखना क्या, 35 रुपये की 2 बोतल, या 35 रुपये की बोतल, 35 रुपये की बोतल, बाकी आप अप्रूप ही लिख लोगे, ये 3 ये 5 ये 5 ये 3 ये 3 ये 5 ये 5 ये 3, ये नॉर्मल है क्योंकि यदि एक साइड डीएनए का 3' है या फिर 3' है तो अगला साइड 5' होना ही है। डीएनए के स्ट्रक्चर में समझाया था 3' क्यों बोलते हैं, क्योंकि थर्ड कार्बन जो प्रेजेंट रहता है शुगर का उसमें OH ग्रुप जो लगे हुए रहते हैं वो फ्री रह जाता है, देयरफॉर इट इज 3'। ऊपर में 5th में जो फॉस्फेट लगे हुए रहते हैं कार्बन 5th से, वो ऊपर में कोई बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं, इसलिए 5'। क्लियर है। तो ये दोनों पैरेंट स्ट्रैंड हैं जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखा है, इट इज पैरेंट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट के रूप में बिहेव करेंगे। इसके ऊपर सिंथेसिस होगी, इस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई इसलिए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलो, लीडिंग स्ट्रैंड बोलो, इस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। सारी बातें मैंने फिर से नीचे नोट डाउन कर दी, इट इज लीडिंग स्ट्रैंड, इट इज लैगिंग स्ट्रैंड, यही आपका एनसीईआरटी का डायग्राम था। और इसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, इसके बाद अल्टीमेटली जब आपने सारी काम को कर लिया, जब सारे के सारे प्रोसेस को आपने कंप्लीट कर लिया तो लास्ट में एक बार प्रूफ रीडिंग होती है। मान लो आप कोई किताब लिखो, कोई किताब आपने मान लो कि आपने लिखा है, तो वंस यू हैव रिटन ए बुक, अगर आपने कोई बुक को लिखा है तो जैसे ही आप बुक को लिखते हो आप क्या चाहते हो कि उस बुक में एरर ना हो, उसके लिए आप क्या करते हो, बुक को मल्टीपल टाइम्स रीड करवाते हो, मल्टीपल टाइम्स उसकी प्रूफ रीडिंग करवाते हो कि भाई इसे इतनी बार पढ़ो ताकि इसमें एरर को मिनिमाइज कर दे। वही काम डीएनए में भी होता है। लास्ट स्टेप इसका प्रूफ रीडिंग होता है। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, अल्टीमेटली कौन कौन से बेस पेयर्स लगे, हालांकि वो एंजाइम काफ़ी एक्यूरेट है लेकिन प्रूफ रीडिंग फिर भी करता है। इस प्रोसेस में फिर भी प्रूफ रीडिंग होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का यदि एरर हुआ तो ये एरर डिजीज में बदल सकता है, किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बदल सकता है। इसलिए हाई प्रेसिजन एंड हाई एक्यूरेसी मस्ट बी मेंटेन्ड, बिल्कुल होना ही चाहिए, समझ रहे हैं बात को। इसलिए प्रूफ रीडिंग होता है और प्रूफ रीडिंग हमेशा 3-5 डायरेक्शन में होता है। ऑलराइट, ये बातें आपको याद रखनी है, ये MTR पॉइंट है। और प्रूफ रीडिंग वही जो प्राइमर हटा रहा था ना, डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर हटा के जो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वाला एंजाइम वही करेगा प्रूफ रीडिंग। कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। मतलब कि जो गलत न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसको निकाल कर करेक्ट वाला लगा देगा। तो ऐसे एक्टिविटी को जब डीएनए की कटिंग को अपन करते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस की कटिंग कर रहे हैं, वैसे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कटिंग किसी एंड से कर रहे हो तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कोई दिक्कत, इस एक्टिविटी को एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं कि जहाँ पे बीच से कहीं पर गलत है उसको काटो, हटाओ, निकालो, नया लगा दो। अब हमने जितना पढ़ा उसके लिए एक ट्रिक आप देख लो, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने 4-5 स्टेप्स पढ़े।
पहला स्टेप क्या पढ़ा, ORI के बारे में पढ़ा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा, इसे आप काट देने आप। ये वाला जो ये कुछ नहीं है, गलत है, समझ लो। अगला जो पढ़ा अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स, प्राइमर फॉर्मेशन, इलोंगेशन और प्रूफ रीडिंग। एक ट्रिक बस आप देखो, मान लो ऑस्कर अवार्ड जो है यूएस का, यूएस में एक अवार्ड दिया जाता है जनरली फिल्म लिटरेचर, फिल्म और कल्चर्स के लिए एक फेस्टिवल दिया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। ये हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इट्स एन एंटरटेनिंग अवार्ड विच एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर अवार्ड। वही ट्रिक हमारा यहाँ पर बनेगा क्या, ऑस्कर अवार्ड्स ऑफ यूएस आर प्रेस्टिजियस, एंटरटेनिंग एंड पॉपुलर। क्या है, ऑस्कर अवार्ड्स ऑफ यूएस, अवार्ड्स ऑफ यूएस आर प्रेस्टिजियस, एंटरटेनिंग एंड पॉपुलर। ऑस्कर से ओ ले लो, ORI पहला स्टेप में वही, इसी के बारे में हमने पढ़ा था। ORI क्या होता है, वो स्ट्रैंड, वो जो एरिया होता है डीएनए के अंदर जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। प्रोकैरियोट्स में 1 होते हैं, यूकैरियोट्स में मेनी होते हैं। अवार्ड्स में ए ले लो, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्यों करवाया हमने, क्योंकि सबस्ट्रेट के रूप में भी न्यूक्लियोटाइड काम करेगा और एनर्जी के देने के भी रूप में काम करेगा। एनर्जी कहाँ से आएगा, उसमें जो हाई एनर्जी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि हमने बनाया, वो हमने सारी बातों को डिस्कस किया, वही काम आएगा जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो। और यूएस में यू को ले लो, अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स करना क्यों जरूरी था, क्योंकि अनकॉइलिंग होगा नहीं तो नया स्ट्रैंड बनेगा नहीं। इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व थे, हेलिकेज एंजाइम इन्वॉल्व थे, टोपोआइसोमरेज थे, और इस टोपोआइसोमरेज का इक्विवेलेंट एक एंजाइम प्रोकैरियोट्स में होता है, डीएनए गायरेज थे। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से रोक रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जुड़ने से। पीआर से प्राइमर ले लो, प्राइमर का फॉर्मेशन इसलिए जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्योंकि प्राइमर OH ग्रुप दे रहा था ताकि डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम करे। एंटरटेनिंग कहने का मतलब क्या हुआ, एंटरटेनिंग से ई ले लो, और इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ हेलिक्स क्यों किया हमने, ताकि इलोंगेट होते जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम करते जाएगा, पॉलीमर बनाते जाएगा। और पॉपुलर से पी ले लो, और ओ से यहाँ पर वाला ओ ले लो, मतलब PR को हटाओ और ओ ले लो। प्रूफ रीडिंग क्यों जरूरी था, प्रूफ रीडिंग ताकि किसी भी प्रकार का एरर न रह जाए, और ये कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और इलोंगेशन का काम कौन कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज 3। इलोंगेशन में हुआ क्या, न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के नया स्ट्रैंड बना रहा था। सारा डायग्राम हम लोग देखे। अब आपको इतना ज़्यादा, इतना लंबा ये वीडियो गया, अपन अब रिवाइज कैसे करेंगे। मान लो कि इतना बड़ा वीडियो को रिवाइज तो नहीं किया जा सकता जल्दी, इसके लिए मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को जितना भी हमने पढ़ा उसे 2 पेज में समराइज़ कर दिया, और वो 2 पेज मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है। अब आप अपने मोबाइल को, जो आप उस मोड में कर रखे हैं, उस फ़ोन को आप अपना मोड को चेंज कर लीजिएगा। ऑलराइट, यू हैव टू चेंज द मोड, आपको मोड को चेंज करना है। तो वंस यू स्विच योर मोड, मतलब कि आप यदि हॉरिजॉन्टल रख रहे हो तो उसे वर्टिकल कर लीजिएगा मोड को, मतलब कि आप जो रोटेशन लॉक होता है आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके सेटअप के अंदर, उससे ऑफ कीजिएगा। तो आप इसको, इस पूरे के पूरे डायग्राम को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। पूरा डायग्राम को मैंने समराइज करके आपको बना रखा है, इस पूरे डायग्राम को आपको समझना है। देखिए, करना कुछ नहीं है, वही नॉर्मल का प्रोसेस है। 3 days 5 days था, हेलिकेज आया, क्या किया, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, टोपोआइसोमरेज। यहाँ पर क्या हुआ, टोपोआइसोमरेज का क्या काम था, आपको पता है। टोपोआइसोमरेज का कोई काम नहीं था, डीएनए गायरस उसके एनालॉगस था। टोपोआइसोमरेज क्या कर रहा था, बस जो टेंशन क्रिएट हो रहा था उसे हील कर रहा था। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग, ORI ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये साइट है, वहाँ पे काम करता है। वहाँ से टोपोआइसोमरेज रिमूव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, ब्रेक एंड जॉइन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को निक करेगा, हल्का सा कट करेगा, और कट करने के बाद यही टोपोआइसोमरेज क्या करता है, दिस टोपोआइसोमरेज ओनली निक्स, कट करके आगे की अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। ऑलराइट, यही टोपोआइसोमरेज। आगे क्या किया हमने, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को लगाया। ये देखिए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों को रोकने से जोड़ेगा। ये देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लग रहा है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोकता है, हेयरपिन फॉर्मेशन को ये रोकता है। ऑलराइट, ये हेयरपिन फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन को ये रोकता है। यही टोपो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। आगे देखते हैं, आगे इसी में हमने क्या पढ़ा। आगे हमने अगला जो स्टेप था क्या था, आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन। आरएनए प्राइमर बना 5 days to 3 days में डायरेक्शन में, और क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा आरएनए प्राइमर को, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर प्रोवाइड किया OH डीएनए पॉलीमरेज के लिए, और क्या हुआ, अल्टीमेटली इलोंगेशन हुआ, नया डीएनए लीडिंग स्ट्रैंड बना और लैगिंग स्ट्रैंड बना। कौन से स्ट्रैंड बने, 2 स्ट्रैंड बने, एक लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, दोनों 5 days to 3 days डायरेक्शन में बने। नीचे वाला टुकड़ों में वाला, इसलिए उसको बोलेंगे ओकाजाकी सेगमेंट। किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट ने, ओकाजाकी ने, इसलिए इसका नाम ओकाजाकी रहा। कौन काम किया एलोंगेशन का काम, एलोंगेशन का काम डीएनए पॉलीमरेज 3 किया, और या फिर उसी को रेप्लिकेस बोलते हैं। ये पॉलीमराइजेशन 5 days to 3 days डायरेक्शन में हुआ, मतलब कि फॉर्मेशन एक्चुअली में हुआ क्या पॉलीमराइजेशन में, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सारी चीज़ें जितनी भी आपने पढ़ी है, सारा का सारा बस ये एक रिवीजन है। ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवीजन। ये आपका रिवीजन के फॉर्म में, यहाँ तक हमने देखा। आगे देखते हैं, आगे जितनी बातें हमने पढ़ी उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। बस शॉर्ट समराइज किया हुआ है। ये जो गैप क्रिएट हुआ प्राइमर के हटने के कारण, इस गैप को डीएनए पॉलीमरेज 1 ने फिल कर दिया। ये जो गैप
हटा, इसको गैप को किसने फिल किया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। इस कॉर्नबर्ग एंजाइम इसको बोलते हैं क्योंकि कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। प्रूफ रीडिंग एंजाइम भी बोलते हैं। रिमूव आरएनए प्राइमर, गैप को, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा, गैप जो डेवलप हुआ है उसको फिल करेगा। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, गैप फिलिंग, सारा बात मैंने डिस्कस करके आया। ई कोलाई में रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड इसका स्पीड है। सारी बातें मैं डिस्कस करके आया, बस ये समराइज्ड है। दोनों जो टुकड़े थे उनको जोड़ेगा कौन? लाइगेज, ज्वाइन द सेगमेंट ऑफ डीएनए, और अल्टीमेटली देखिए आपका 1 से 2 स्ट्रैंड बनकर तैयार है, मतलब 2 डीएनए बनकर तैयार है। इसी प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक चीज़ बस आप यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि सारा पॉइंट का समरी मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों बोले? क्योंकि आधे में कंटिन्यूअस था और आधे में डिसकंटिन्यूअस था, इससे हमने इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस बोले। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम क्या बोल रहे थे? डीऑक्सीराइबो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बाद जो अपना नया न्यूक्लियोटाइड बन रहा था, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, वो क्या था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही था। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करवा रहा था और सबस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा था डीएनए रेप्लिकेशन में। एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में सिंगल ओआरआई होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मोर देन 1 ओआरआई पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज हमने बताया, थर्ड का काम क्या है? नॉर्मल पॉलीमराइजेशन काम है। फर्स्ट का काम क्या है? प्राइमर हटा के उसके जगह पे बेस पेयर्स को जोड़ना। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, और कटिंग वाली जो एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस वाली एक्टिविटी, वो 3' to 5 डायरेक्शन में होती है। ये मैंने आपको बताया अभी। जो अपनी कटिंग वाली एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दैट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इज डन इन 3' to 5' डायरेक्शन। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको ध्यान रखना है। सारा पॉइंट को समराइज कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड का क्या काम है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों ही करता है, लेकिन मेन कौन है? फर्स्ट। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5' to 3' डायरेक्शन में नहीं, ये पॉइंट को आप हटा दो। डीएटीपी, जब एटीपी जो अपना एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड था, वहाँ से जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो वहाँ पे एंजाइम कौन से होंगे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ेंगे? वो पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम रहता है। यहाँ पर जाकर आपका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होता है। आइए एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। हमने 5 स्टेप में चीज़ों को पढ़ा। ओआरआई के बारे में पढ़ा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने पढ़ा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद अनकॉइलिंग के बारे में पढ़ा। क्यों पढ़ा? सारी चीज़ों का रीजनिंग मैंने आपको दिया। प्राइमर फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा, इलोंगेशन के बारे में पढ़ा, और अल्टीमेटली प्रूफ रीडिंग। और फिर हमने देखा इन ये जो 2 पेज आपको मैंने दिया ना, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला, एक जो ये हॉरिजॉन्टल वाला अपना पेज है, ये वाला जो पेज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, 1 मिनट प्लीज़। ये वाला जो अपना पेज है, ये पूरा पेज, और ये वाला पेज जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा, ये पूरा पेज, ये पूरे पेज में आपका उतना लंबा जो 1.5-2 घंटे का वीडियो चला, वो पूरा समरी मैं आपको ये पेज वापस सेंड कर दूंगा। Wherever you wish, you just message me, comment me, I will send you over there. You just read these 2 pages. After understanding the whole video, you will find yourself very easy and comfortable to revise when you will revise it again and go to give any exam or mock. Alright, meet you in again next lecture, और next video में हम start करेंगे what is RNA, और RNA के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, happy learning, keep learning and keep growing.